Hello, class 7th. Today we are going to study chapter number 8 in your geography section, human environment and interaction, the tropical and the subtropical region. As you know that this is the region of Ladakh. Okay. And it is also similar to Ladakh region, but actually it is not a Ladakh region. It is a South America. Okay. So how will you describe this region as a South America? Because there is a different type of clothing, food, shelter, their living standard, there's natural vegetation, okay, their dancing styles, games, quarreling, singing criteria, many more things you can see or watch and measured in your mind. Okay, so which type of life adheres in the Amazon basin, or which type of life is running in daily life? Let me start to discuss this. Life in the Amazon basin. As we know that Amazon basin is situated in the tropical region, which is lies very close to the equator, between 10 degree north to 10 degree south, and it is referred to as the equatorial region. The river Amazon flows through this region, okay, and it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. Or in the South America region, there are various types of countries like Argentina, Paraguay, or Uruguay, Colombia, Venezuela, French Guiana, Suriname, Guyana, Colombia, Ecuador, Peru. Or look, as we know that here is a Tropic of Capricorn, and this South America region, which is that is lie very close to the equatorial region. That's why here the hot weather is oftenly occurs, and both day and nights are almost equally hot and humid. Okay, so the place where a river flows into another body of the water, that is called the river mouth, or the river drains basins portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela also. बच्चों, ये जो रीजन है ये मैं आपको बता रही हूँ साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका जो हमारी कर्क रेखा है उसके बहुत पास है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है बच्चों। यहाँ पर जंगल का एरिया है जिसको अमेजन, जैसे जो अमेजन नदी है यहाँ पर जो मेन नदी है यहाँ की वो अमेजन है, और अमेजन के पास का जो रीजन है ये सारा ग्रीनरी वाला रीजन है। और अमेजन बेसिन, यहाँ पे अमेजन रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, और इस बेसिन के ही आसपास देखिए आप कैसे ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिखाया गया, यानी कि यहाँ पे ये सब नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। इसके आसपास के देखिए क्षेत्र जो हैं इसमें कौन कौन से देश आएंगे, फ्रेंच गुआना है, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पैराग्वे, इक्वेडोर, पेरू, अर्जेंटीना नीचे आ जाएगा, चिली है, यूरुग्वे है, ये ब्राज़ील है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके नीचे साइड में पड़ेगा। इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखो तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ठीक है, अब आती है बात कि बच्चों इसमें जो आपको पता ही है कि जो अमेजन नदी है बह रही है, तो जहाँ से ये नदी निकल रही है उसको बोलेंगे अमेजन नदी का माउथ या रिवर माउथ, और कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें जाके गिर रही हैं तो इसको बोलेंगे अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन के जो क्षेत्र हैं वो देखो कौन कौन से, ब्राज़ील के पास, ये अगर हम बहुत मैं फोकस करूँ तो आपको दिखेगा अमेजन रिवर है। देखो यहाँ पर आपको दिख रही है मैरागुए, मैरियाना रिवर, मैरियाना ट्रंच है, मोडेरा रिवर, जिंगू रिवर, टोकेंटिस रिवर, और इधर नीग्रो रिवर भी है बच्चों। और इस साइड कौन सी रिवर है, बहुत ही लाइट दिख रहा है फिलहाल। ये इतनी सारी रिवर्स अमेजन बेसिन में जाती हैं। ठीक है, अब आएगी बात कि जो कंट्रीज़ बेसिन के थ्रू पास आउट हो रही हैं इसमें, मतलब पास हो रही हैं विद द इक्वेटर पासिस, तो अब इसका क्लाइमेट कैसा होगा, लेट वी सी।
Climate: the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. I have already explained you that Amazon basin पे बच्चों hot climate हमेशा होता है, wet climate पाए. Hot and wet मतलब मिक्स वाला. बहुत जल्दी वहाँ पर गर्मी पड़ने लग जाती है और जैसी गर्मी होती है बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद सब गीला. ठीक. तो डे एंड नाइट जो है वो इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं. मतलब सुबह बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंड. और द स्किन वहाँ पे ना बड़ी चिपचिपी सी फील होती है. ऐसा क्यों? अरे भाई सोचो, मन में ज़रा सोचो. सुबह गर्मी हो रही है, पसीने पसीने में आ गए, उसके बाद तुरंत बारिश हो गई तो ठंड तो बढ़ेगी. तो यानी कि एकदम से गर्मी और एकदम से सर्दी, तो क्या होगा? चिपचिपापन हो जाएगा. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट रोज़ बारिश होती है. वो अगर तुम्हें पिक्चर का याद हो थोड़ा बहुत, तो मैंने एक फिल्म देखी थी, क्या नाम था उसका? एनाकोंडा. एनाकोंडा में बच्चों ना अमेजन का बहुत बड़ा बढ़िया पिक्चराइजेशन है. तो मैं तो तुम्हें सलाह दूंगी तुम एनाकोंडा जरूर देखो. और एनाकोंडा फिल्म में ना अमेजन का पूरा बढ़िया सा क्राइटेरिया दिखाया गया. पूरा लैंड एरिया जो है और जंगल का क्षेत्र अमेजन का बहुत अच्छा दिखाया गया. ओके, आगे बात करते हैं. तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है भाई? टेम्परेचर जनरली जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है. अब आता है रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट की बात करें तो रेन फॉरेस्ट में यहाँ पर कैसा फॉरेस्ट है? बहुत ही थिक रीजन का फॉरेस्ट है. बहुत ही घना वन है, घने जंगल हैं, बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं इसमें, और बहुत डरावनी चिड़िया भी पाई जाती है. देखो एक एक चिड़िया, क्या नाम है इसका? टोकन्स. कितनी बड़ी देखो, बाप रे, इसकी बीक देखी कितनी बड़ी है. तो ये बीक वाली इतनी मोटी मोटी चिड़िया, हिंदी में पता क्या बोलते हैं इसको? कटफोड़वा. कटफोड़वा यानी कि लकड़ी में फोड़ कर दे, जो लकड़ी में छेद करने वाली. ओके. हाँ. अब देखो इसमें और क्या क्या है. इसमें डार्क एंड डैम्प, मतलब बहुत ही घना अंधेरा दलदल वाला क्षेत्र है ये. और ऑर्किड्स है, ब्रोमेलिड्स है, ऐसे प्लांट पैरासाइट भी ग्रो करते हैं. फौना बहुत रिच है यहाँ पर, मुझे पहले बताया था. और हमिंग बर्ड्स वगैरह भी यहाँ पर पाई जाती है. मतलब यहाँ पर बर्ड्स का पैराडाइज है, बर्ड का स्वर्ग है. ठीक है. और इसके बाद इसमें देखते हैं एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं. मंकीज, स्लॉथ, आंट ईटिंग टैपायर्स, ये सब यहाँ पाए जाते हैं. क्रोकोडाइल्स भी हैं, स्नेक्स हैं, पाइथन्स, एनाकोंडा, बोआ. ठीक है, ये सब इसमें पाई जाती है स्पीशीज. बेसिन इज होम टू थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स. कई सारे तो कीड़े पाए जाते हैं, कई टाइप के. पिराना फिश बहुत ज़्यादा फेमस है, खाने में बड़ी अच्छी लगती है लोगों को. यहाँ रिवर में पाई जाती है पिराना फिश. ओके. अब आता है बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ विदाउट फाउंड देयर. यानी कि इस अमेजन बेसिन में बहुत अच्छा, एक कह सकते हैं सी फूड और रिवर फूड मिलता है. वैसे भी तुम लोगों को फ़िश खाना बहुत पसंद है, मुझे पता है, आई नो. अब आगे, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. यहाँ के लोग कैसे हैं भाई? लोग जंगलों को काट के रहते हैं. और वैसे तो लोग क्या करते हैं कि फिशिंग वगैरह करते हैं, हंटिंग करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं. विमेंस वगैरह जो हैं यहाँ पर मैक्सिमम क्रॉप की केयर टेकिंग करती हैं, फसल उगाती हैं, उसको फसलों की देख रेख भी करती हैं. और मेनली जो है जैसे टपोइका उगा लेती हैं, जिमीकन जिसको बोलते हो, पाइनएप्पल है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है, ये सब. हंटिंग और फिशिंग के साथ साथ वीमेंस जो है फैमिलीज़ की भी वो करती हैं, सुरक्षा करती हैं, उनके लिए वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करती हैं. स्लैश एंड बर्न वाली एग्रीकल्चर की खेती होती है. मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या हुआ, जैसे झूम खेती बोलते हैं. यानी कि जब फसल हो जाती है, फसल होने के बाद में उसको जब काट ली जाती है, तो काटने के बाद में जंगल की तरह, जंगल जैसे आग नहीं लगाते वैसे ही खेतों में आग लगा देते हैं. आग लगाने के बाद राख होती है, राख को बिखेर के पूरे खेत में फैला देते हैं. जैसे तुम लोग जनरली तुम्हारे गांव में होता है, खेतों में होता है, वही स्लैश एंड बर्न, और कुछ नहीं है आई थिंक. अब आता है द स्टैपल फूड इज मैनोइक एंड मैनोइक को हम लोग बच्चों कसावा के नाम से जानते हैं. कसावा एक टाइप का चावल जैसा होता है. और एक और चीज़ है, यहाँ पर लिखा है बच्चों कि ये जो मैनोइक है, ये है कसावा जिसके नाम से जाना जाता है. ये कह रहे हैं पोटैटो की तरह ग्रो करता है, अंदर होता है. अच्छा, पोटैटो की तरह ग्रो करता है, यानी कि जस्ट लाइक जिमीकंद ये भी है. ठीक है. अब है, यहाँ के लोग क्या खाते हैं पता है तुम्हें? कीड़े भी खाते हैं. चींटियाँ, क्वीन आंट्स, वो खा जाते हैं. पता नहीं कड़वी लगती मीठी लगती, भगवान जाने. एग सैक्स, लो चींटियों के अंडे भी खाते हैं, और उन अंडों के खोल भी खाते हैं. कैश क्रॉप्स पता है कौन कौन सी है? कॉफ़ी, मेज, कोकोआ, ये सब ग्रो होती है यहाँ पे. द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फूड फॉर द हाउसेज. अब रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, हाउसेज के लिए बहुत सारी लकड़ी टाइप की मिलती है, लकड़ी भी होती है, ताकि उनसे, तो पता ही है ना छप्पर वगैरह कैसे छाया जाता है, थैच्ड हाउसेज बनते हैं, है ना. ढालदार इनकी जो है छतें होती हैं, इनको मेलोका बोलते हैं. ठीक.
1970 में जो ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया था यहाँ पर रेन फॉरेस्ट में आसानी से पहुँचने के लिए। और बाकी पता ही है कि यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट है और अमेजन बेसिस में पूरे साल भर बारिश होती रहती है। तो जब बारिश होती है तो ऊपर का जो सॉयल है वो बह के नीचे की तरफ आता है। इस तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर टॉप सॉयल जो है वो वॉश्ड अवे हो जाती है, निकल जाती है और उसके बाद रेनफॉल होते होते लश फॉरेस्ट यहाँ पर ग्रो करते हैं। अब आता है गंगा ब्रह्मपुत्रा की बेसिन। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है उसका कंपैरिजन इन्होंने अमेरिका के अमेजन बेसिन से किया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने यहाँ का गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्रा आपको पता ही है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है इनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी इंडियन में मिलकर बहती हैं और ये सब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती है जो कि इंडिया में पाया जाता है। इसका सिचुएशन देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड। ट्रिब्यूटरीज कौन सी? गंगा नदी की घाघरा और सोन नदी, चंबल, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा। अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, हिमालय रीजन के फुट हिल्स में यहाँ से निकलती है गंगा नदी। और इसी के साथ आप देखो, भाई क्लियर नहीं दिख रहा। तो यहाँ बच्चों गंगा बेसिन है और ये है भूटान। तो ये आप देखो कि भूटान, ये बांग्लादेश, तो यहाँ से गंगा नदी निकलेगी। गंगा नदी आगे जा कर के मिलती है, उसके बाद में आगे जाते जाते यहाँ पर ये है ब्रह्मपुत्रा बेसिन, इसके साथ मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बाद में देखो बे ऑफ बंगाल में सीधे गिरेगी। ठीक, अब आगे आता है कि जो बे ऑफ बंगाल और ये जो ब्रह्मपुत्रा का रीजन है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है ब्रह्मपुत्रा, है ना। अब ये ब्रह्मपुत्रा इधर से वेस्ट बंगाल के रीजन से आ रही, यहाँ मिल गई आके, और ये यहाँ गंगा नदी का बेसिन मिल गया। दोनों जा कर के बांग्लादेश के बगल में ये यहाँ रीजन में मिल रही हैं और यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे। अच्छा जी, सुंदरबन डेल्टा ये इसी क्षेत्र में आता है, वेस्ट बंगाल रीजन में। ये इस फीचर का, इस बेसिन का बहुत बड़ा फीचर है, डेल्टा। ऑक्सबो लेक यहाँ पाए जाते हैं जो कि प्लेन एरिया से डॉट मतलब प्लेन एरिया में डॉट डॉट दिखाए भी गए हैं। यहाँ पर हमेशा क्लाइमेट मानसून रहता है जो कि मिड जून से मिड सितंबर तक है और जो समर्स में हॉट होता है, विंटर्स में कूल होता है। और क्या बताऊँ इसके बारे में, और ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर माउंटेन एरिया के पास में गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे, कई सारी क्रॉप्स लोग ग्रो करते हैं। मेन क्रॉप पैडी है, धान की खेती होती है और जूट की भी खेती होती है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत हाई है। वीट, मेज, सॉर्गम, ग्राम, मिलेट्स ये सब और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप में शुगर केन एंड जूट है। बनाना प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल और असम के रीजन में चाय की खेती बहुत होती है। सिल्क वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्क वर्म सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं बिहार और असम में, वहीं पर सिल्क की खेती भी होती है। इसके बाद में देखिए इन द गंगा एट ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री ग्रो करते हैं, जैसे कि टीक है, साल है, पीपल है, बैम्बू है ना। अब आता है कि डेल्टा रीजन जो है सुंदरबन का, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम देखिए कौन कौन से पेड़ होते हैं, कॉनिफर्स होते हैं ना, फर के एरिया, जैसे पाइन, चीड़ के पेड़, देवदार, फर। यहाँ पर क्लाइमेट कूल होता है। स्लोप्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टीप यानी कि बहुत ढालदार है। यहाँ पर बेसिन में वाइल्ड लाइफ वैरायटी मिलती है, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी ये सब पाए जाएंगे। एक सिंग वाला ही जो ये है राइनोसोरस, ये भी पाया जाता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। आपको पता है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो इसी के लिए फेमस है ना, वहाँ असम में ही है। डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये सब पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ बाउंड होती है। फ्रेश एक्वेटिक लाइफ में बहुत सारी फ्रेश रिवर वाटर्स वगैरह में, लेक्स में, बे ऑफ बंगाल सी, ये सब आपकी एक्वेटिक लाइफ शो करता है। इनमें रोहू, कटला, हिल्सा फिश पाई जाती है। फिश और राइस तो मेन स्टेपल फूड है वेस्ट बंगाल का। तो बच्चों ये चैप्टर मुझे लग रहा है यहीं पर ख़त्म हो गया और थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हाँ थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बस खत्म। द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पर बहुत सारे बड़े बड़े बिग टाउन्स एंड सिटीज़ है, जैसे कि सिटीज़ में इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब मोस्टली हाईली पॉपुलेटेड एरियाज है जहाँ पर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं बेसिन पर। और उनके परिवार भी इन्हीं गंगा नदी के उस पर, ब्रह्मपुत्रा नदी के उस पर पलते हैं। यहाँ से डिस्चार्ज वगैरह भी निकलता है जो कि गंगा नदी में बहा जाता है। गंगा को पॉल्यूट किया जाता है, ये गलत बात है, हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। 4 वे जो ट्रांसपोर्ट के हैं वो वेल डेवलप्ड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर। प्लेन एरियाज में आपको पता है रोडवे, रेलवे सब ट्रांसपोर्ट सब अवेलेबल है। वाटरवेज में ये सब इफेक्टिव वे भी अप्लाई किए गए हैं। कोलकाता जो है उसमें
रिवर हुगली बहुत फेमस है, उसका प्लेन एरिया जो है वहाँ पर बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, टूरिज़्म वहाँ पे बहुत फेमस है। ताजमहल जो है वो गंगा आपको पता है ताजमहल कहाँ है? आगरा में यमुना नदी के बेसिन पे है। इलाहाबाद में गंगा नदी यमुना नदी है। बुद्धिस्ट का स्तूपा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लखनऊ वगैरह में इमामबाड़ा है। असम में काजीरंगा है। मानस पक्षी विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है अरुणाचल प्रदेश में। ये सब डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो बच्चों ये चैप्टर तो हो गया फिनिश, और अब अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब मत करना भूलना बिल्कुल भी, और शेयर भी। तुम लोग बहुत कम सब्सक्राइब करते हो और सब्सक्राइब करने के बाद ना कैंसिल कर देते हो। कैंसिल भी मत करना, आपकी बार सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, बाय बाय।